दिस इज प्रतिमा बउरा। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम is divided into two groups, lentic and lotic. The fresh water ecosystem can be conveniently divided into two main divisions. Lentic from lennis, शब्द लेनिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है काम, और स्टैंडिंग खड़ा पानी, और बेसिन सीरीज इकोसिस्टम. Example of this division are lakes, ponds, pools, swamps, marshes, etc. Another type of ecosystem, freshwater ecosystem, is lotic. It is the word taken from lotus, यानी washed, मतलब होता है washed यानी रनिंग वाटर, या उसको कहेंगे रनिंग और चैनल सीरीज इकोसिस्टम. Example of this division are rivers, streams, springs, etc. These two freshwater ecosystems have been extensively treated in the following two sections. दो sections में divide किया गया है. पहला हम लेते हैं Atlantic ecosystem. Lakes are inland depressions containing standing water. Lakes जो हैं वह लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्वैम्स है या मार्शेस हैं, वह खड़ा पानी होता है, बहता पानी नहीं होता. दे वेराई कंसिडरेबली इन एरिया एंड डेप्थ. इनके अंदर एरिया और गहराई, यानी उसका लेक का एरिया और लेक की गहराई जो है उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है. The largest lake in the world, the Lake Superior in North America, has a surface area of 83,000 square kilometers and a maximum depth of 307 meters is equal to 5,000 feet, whereas the deepest lake in the world, Lake Baikal in Siberia, is nearly half the area of Lake Superior. एरिया में वह जो है बाइकाल लेक जो है वह सुपीरियर लेक की आधी है. दैट इज 31,500 स्क्वायर किलोमीटर. इट हैज़ हाउएवर मोर देन ट्वाइस इट्स डेप्थ, जबकि गहराई डबल है, 706 मीटर्स गहराई है इस साइबेरिया की लेक की. फ्रेश वाटर लेक्स ऑन दिस अर्थ होल्ड 125 into 10⁻³ square cubic kilometers of water and have inflow as well as outflow. तो इतना करीब उनमें पानी है और इनफ्लो और आउटफ्लो जो है इतना ही इनफ्लो और आउटफ्लो होता है. इन एडिशन दे हैव वेरियस पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन विद इन देयर बाउंड्रीज. बाउंड्रीज के अंदर उनमें पानी सर्कुलेट होता रहता है. एंड सो देयर वाटर इज नॉट टोटली स्टैटिक. इस वजह से जो है यह नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से भी खड़ा है पानी, यानी उनके अंदर वेव्स चलती रहती है या पानी के पैटर्न्स बनते रहते हैं और सर्कुलेशन जो है पानी का सर्कुलेट होता रहता है. हाउएवर दे डू लैक द कांस्टेंट लीनियर और टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द वाटर. जबकि उन लेक्स के अंदर जो है टर्बुलेंट फ्लो या लीनियर फ्लो नहीं होता है, यानी एक जगह से पानी जो है बहता हुआ दूसरी जगह कंप्लीट चला जाएगा, या कंटिन्यूस जो है फ्लो पानी का नहीं चलता है. या टर्बुलेंट फ्लो रिवर्स में, जो रिवर्स में टर्बुलेंट फ्लो होता है वैसा नहीं होता है. लेक्स, impoundment and wetland. Atlantic ecosystems include all those systems which have a static body of water. Atlantic ecosystem में वह सारे जो है systems होते हैं जो एक खड़े पानी में होते हैं. Lakes, impoundments and wetlands are all Atlantic ecosystems. ये सभी Atlantic ecosystems है. Let us see how they differ from the each other. अब देखते हैं कि वह जो है दूसरों से भिन्न कैसे हैं.
Most lakes occur in the region which have recently been subjected to geological changes, say within the past 20,000 years. However, few lakes such as Lake Baikal in Russia and Lake Tanganyanshia in Africa are ancient and are estimated to have originated 20 million years ago. Lakes arise in several ways. Some, like the tectonic lakes, are formed in basins created by biological, geological activities such as rapping and faulting of the earth's crust. crust. Most of the Himalayan lake are tectonic in origin. Some are formed in crater depressions of extinction volcanoes and are called crater lakes. For example, Lake Kongcharang in Kashmir. Others may be the result of glacial activity. For example, most lakes of South Africa and Northern America originated due to the glacial erosions and depositions, whereas the glacial aberrations of slopes in high mountains and graved basins, which later became filled with melting snow and rain. Still others have been found by deposition of silt, driftwood, and other debris in beds of slow moving streams. Lakes may also arise by landslide blocking of streams and valleys. Characteristics of lake. The environment of static water of lake and pond sharply contrast with those of lotic ecosystems. लैंटिक इकोसिस्टम या लेक और पॉन्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लोटिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं. लाइट पेनिट्रेशन इन लेक्स इज यूजुअली अप टू अ सर्टेन डेप्थ विच एज यू नो इज अफेक्टेड बाय टर्बिडिटी. लाइट पेनिट्रेशन जैसे कि लेक्स में देखते हो, लाइट पेनिट्रेशन यानी रोशनी जो है लेक के अंदर कितने डेप्थ तक पहुंच रही है. और आपको यह भी पता है कि यह उसके अंदर घुलनशील जो पदार्थ हैं लेक के अंदर, दैट इज़ नोन एज टर्बिडिटी, यानी मिट्टी घुलित है या जो भी उसमें मिनरल्स घुलित हैं उसकी वजह से लाइट पेनिट्रेट यानी रोशनी जो है बहुत डेप्थ तक नहीं पहुंच सकती है. तो उनकी जो है लेक्स की लाइट पेनिट्रेशन जो है वो थोड़े ही डेप्थ तक होता है. Temperature and dissolved oxygen also vary with because only a relatively small surface of water body is in direct contact with air. Dissolved oxygen or generally less compared to the lotic system. Dissolved oxygen जो है वह भी थोड़ी इसके अंदर कम मात्रा पाई जाती है क्योंकि छोटी बॉडी सरफेस होने की वजह से, यानी उसकी सतह की सरफेस कम होने की वजह से उनका हवा से कांटेक्ट कम एरिया में ही है. पानी का कांटेक्ट जो एरिया के साथ में है वह कम है, इसलिए इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम पाई जाती है. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूजुअली टेक्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लेक. डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है वह बहुत ही तले में लेक के तले में जाके होता है. द ऑक्सीजन कंटेंट यूजुअली डिक्रीजेज विथ डेप्थ. इसलिए ऑक्सीजन कंटेंट हम जैसे जैसे नीचे की तरफ डेप्थ की तरफ गहराई की तरफ जाएंगे लेक में, वैसे वैसे जो है वह कम होता चला जाएगा. द ग्रेडेशन ऑफ टेम्परेचर, सनलाइट and oxygen are directly responsible for vertical zonation और stratification. जो द ग्रेडेशन जो है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर जूं कम होता जाएगा, नीचे जाएंगे तब सनलाइट और ऑक्सीजन जूं नीचे जाएंगे कम होता जाएगा. यह डायरेक्टली जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर वर्टिकल जोनेशन, क्योंकि हम वर्टिकली उसको जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं या स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हैं. यही जो है रिस्पॉन्सिबल है तीनों चीज़ें उसके लिए. Occurring in lakes, they are also responsible indirectly for horizontal zonation of lakes as they profoundly influence the distribution of lake organisms. और हॉरिजॉन्टली भी
हॉरिजॉन्टली भी इसके अंदर जोन्स बन जाते हैं, या पार्टीशन या लेक्स या स्ट्रेटा बन जाते हैं हॉरिजॉन्टली भी लेक्स के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह भी इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है, विच कंट्रीब्यूट टू दी कैरेक्टरिस्टिक हॉरिजॉन्टल जोनेशन। और यही इसको जो है प्रभावित करता है और यही कंट्रीब्यूट करता है हॉरिजॉन्टल जोनेशन के लिए। Thermal stratification. Shallow lakes show no thermal stratification as their waters are well mixed. शैलो लेक यानी बहुत डेप्थ जिसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके अंदर जो है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पानी जो है वह कंप्लीटली मिक्स होता ही रहता है, रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट। और इसका नतीजा ये होता है कि टेम्परेचर जो है एक समान हो जाता है। However, lakes with depths of more than 15 meter exhibit fairly pronounced temperature stratification. जबकि 15 मीटर या उससे ज़्यादा की जो डेप्थ वाली लेक्स होती हैं उनके अंदर हमको थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को, यानी टेम्परेचर को देखते हुए उसके अंदर स्ट्रेटा बन जाएंगे या जोन बन जाएंगे, या जो है ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे डेप्थ की तरफ तब टेम्परेचर को लेके बदलाव हमको पता चलेगा। समर स्ट्रेटिफिकेशन. Thermal stratification is fairly pronounced during the summer seasons in most lakes of the temperature lakes of the temperate regions, but is rare in lakes of tropical and subtropical regions. थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लेक्स के अंदर जो ठंडे प्रदेशों के जो लेक्स होंगी उनके अंदर तो हमें स्ट्रेटा या थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन या टेम्परेचर को लेके फ़र्क पाया जाएगा, बट परंतु जो ट्रॉपिकल रीजन की या हॉट रीजन की है, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पे क्योंकि हॉट रीजन है यह और सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर भी जो है यह फ़र्क जो है कम पाया जाएगा, या यह उनमें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाएगा गर्मी के दिनों में जो कि बहुत डीप लेक्स हैं। There is so because the rate of mixing layers is very fast in case of tropical lakes, whereas the temperate lakes retain well-defined layers showing different temperatures. जबकि दिस इज सो ये ऐसा इसलिए है कि रेट ऑफ मिक्सिंग लेयर्स यानी आपस में जो जोन्स बने हुए हैं उनकी लेयर्स जो है वो मिक्सिंग उनके अंदर बहुत फास्ट होती है। यह केस होता है ट्रॉपिकल लेक्स के अंदर, वेयर एज टेम्परेट लेक्स रिटेन वेल डिफाइंड लेयर्स शोइंग डिफरेंट टेम्परेचर। जबकि टेम्परेट लेक्स जो हैं जहाँ भी कोल्ड रीजन्स होते हैं या ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे जो है वेल डिफाइंड यानी पूर्ण परिभाषित से टेम्परेचर या स्ट्रेटा पाए जाएंगे, यानी टेम्परेचर को लेके विभिन्न लेयर आपको साफ नज़र आएंगी। These layers do not mix rapidly. यहाँ पे ये लेयर्स आपस में जल्दी से मिक्स नहीं होती है। Therefore, the temperate lakes exhibit severe stratification with respect to temperature. तो यहाँ पर टेम्परेट लेक्स के अंदर जो है स्ट्रेटा आपको साफ नज़र आएंगे। Let us understand how thermal stratification develops in water bodies and why it is maximum during the summer season. अब हम समझते हैं कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों डेवलप होता है वाटर बॉडीज में और यह मैक्सिमम समर के समय क्यों होता है, गर्मियों में ही ऐसा क्यों होता है। इन लेक्स द टॉप 1 meter of the water surface directly absorbs around 90% of the total solar radiation falling on it. तो 1 मीटर जो लेक की 1 मीटर जो गहराई होती है वहाँ तक वाटर सरफेस जो है पानी की सरफेस 90% तक सोलर रेडिएशन को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेती है, 90% तक, एंड इज कंसिडरेबली मोर हीटेड इन दी प्रोसेस, और इस दौरान वह और ज़्यादा गर्म होती रहती है। Consequently, the lower subsurface layers receive progressively
लेस रेडिएशन। तो इस 1 मीटर के नीचे जो लेयर है, सब सरफेस लेयर जो है, वह उसके अंदर कम रेडिएशन, सोलर रेडिएशन पहुंचते हैं एंड रिमेन रिलेटिवली कूल, और इस वजह से वो थोड़ी ठंडी लेयर होती है। दस द लेक बिकम्स थर्मल स्ट्रेटिफाइड with its water forming layers due to temperature differences और thermal gradient। तो इस वजह से लेक के अंदर जो है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है विथ इट्स वाटर फॉर्मिंग लेयर्स। तो टेम्परेचर को लेके जो है वाटर जो है लेयर्स बना देती है, यानी अलग अलग लेयर्स होती हैं जिनका टेम्परेचर भिन्न भिन्न प्रकार दर्शाता है। Thermal stratification is maximum during summer season, primarily due to two reasons. First, due to the fact that solar intensity increases during this period. पहला कारण समर सीजन में स्ट्रेटिफिकेशन डेवलप होने का ये है कि ज्यों ज्यों दिन जो है बढ़ता है, सोलर इंटेंसिटी, सन की गर्मी या सूरज की गर्मी दिन के साथ साथ बढ़ती रहती है, एंड इट हीट्स द सरफेस लेयर ग्रेटली वाइल द लोअर लेयर्स रिमेन कंपैरेटिवली कूल। ऊपर वाली लेयर अत्यधिक गर्म होती रहती है बनस्पत की उससे नीचे जो पानी की लेयर है वो कंपैरेटिवली ठंडी रहती है। सेकेंडली, द थर्मल स्ट्रेटिफाइड लेयर ऑफर रेजिस्टेंस टू मिक्सिंग बाय विंड। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वह पानी को मिक्स होने के, विंड के द्वारा या हवा के द्वारा वह मिक्स होने के अंदर भी जो है वह रोक लगाता है। द फेयरली pronounced stratification of lakes developed in summer is called summer stratification or stagnation. The various stratified layers which are formed are the result can be delineated as follows. तो जो स्ट्रेटा से थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन से जो लेयर्स बनती है वो नीचे निम्न प्रकार से समझाई जा रही है। एपिलिम्नियन, this forms the upper layer of the lake and consists of freely circulating warm water which is well lighted though poor in nutrients। यह सबसे अपर मोस्ट लेयर है लेक की, कॉन्स्टेंटली ऑफ फ्रीली सर्कुलेटिंग वार्म वाटर, और लगातार जो है गर्म पानी सर्कुलेट होता रहता है, और इसके अंदर वेल लाइटेड, रोशनी पूरी होती है लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। मोस्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टॉन्स ग्रो इन द एपिलिम्नियन। ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टॉन्स इस एपिलिम्नियन में ही ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं, विच इज़ वेल एरिएटेड both due to photosynthetic oxygen production by plants and mixing by wind। तो यह वेल एरिएटेड होता है, यह लेयर एपिलिम्नियन वेल एरिएटेड होती है, एक तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के द्वारा जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एंड मिक्सिंग बाय विंड, और दूसरा विंड की कंटिन्यूस मिक्सिंग होती रहती है इस वजह से। मेटालिम्नियन, दिस जोन लाइज बिलो द एपिलिम्नियन। यह मेटालिम्नियन लेयर जो है वो एपिलिम्नियन के नीचे पाई जाती है एंड अबव द हाइपोलिम्नियन, और हाइपोलिम्नियन से अबव ऊपर पाई जाती है, एंड दस फॉर्म्स द इंटरमीडिएट लेयर, और इस वजह से यह है मध्य लेयर या इंटरमीडिएट, दोनों लेयर्स के बीच वाली लेयर कहलाती है, विच इज़ नॉन सर्कुलेटिंग। यह है इसके अंदर पानी का सर्कुलेशन नहीं होता। द मेटालिम्नियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप एंड रैपिड फॉल इन वाटर टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। तो मेटालिम्नियन के अंदर ये स्टीप जो है और रैपिड फॉल होता है टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर का, यानी तेजी से पानी के टेम्परेचर में गिरावट आती है जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ जाते हैं। विद इन द मेटालिम्नियन इज प्रेजेंट द थर्मोक्लाइन, और मेटालिम्नियन के अंदर ही थर्मोक्लाइन होता है, द प्लेन एट विच द टेम्परेचर ड्रॉप्स मोस्ट रैपिडली। यानी ऐसी सतह है पानी की जहाँ पे पानी एकदम तेजी से उसके टेम्परेचर गिरता है, एटलीस्ट 1 सेल्सियस फॉर ईच मीटर ऑफ डेप्थ। तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वह डेप्थ के साथ गिरता है। थर्ड लेयर दैट इज हाइपोलिम्नियन।
This zone forms the bottom layer which is deep, cold and non-circulating. यह सबसे सबसे नीचे वाली लेक की सबसे नीचे वाली लेयर बॉटम लेयर कहलाती है, जो कि डीप होती है, बहुत गहराई में पाई जाती है। यह लेयर ठंडी होती है और नॉन सर्कुलेटिंग होती है, और इसके अंदर भी सर्कुलेशन नहीं होता। द हाइपोलिम्नियन इज जनरली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दो इट्स ऑक्सीजन कंटेंट इज लो ड्यू टू its utilization by decomposition process, which, as you know, generally occurs here and uses up oxygen. हाइपोलिम्नियन जो है वह रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट इसके अंदर लो होता है। क्यों लो होता है? बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन प्रोसेस, जो कि सतह लेक की सतह पर ही होता है, जैसा कि आपको पता है। और उस डीकम्पोजिशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ होता रहता है, इस वजह से टेम्परेचर फॉल हियर इज़ जेंटल, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सर्टेन टेम्परेचर लेक्स इज नॉट लिमिटेड टू द समर सीजन। सम जो है कुछ स्ट्रैटिफिकेशन जो है कुछ लेक्स के अंदर, टेम्परेट लेक्स के अंदर, यह समर सीजन में ही स्ट्रैटिफिकेशन जो है केवल नहीं पाया जाता है, एज दे अंडरगो stagnation or stratification in winter also, which is called winter stratification or stagnation and is described below. तो गर्म सर्दियों में भी इनमें जो है टेम्परेट लेक्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। Winter stratification. During extremes of winter, the surface layer of the lake freezes or attain a temperature close to 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेट लेक्स हैं इनके अंदर गर्मियों सर्दियों के अंदर जो है सरफेस लेयर लेक की जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है। अंडर दीज कंडीशंस एंड इनवर्स स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप्स। इन जो स्थितियों के अंदर एक इनवर्स स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। इनवर्स यानी उल्टा। उल्टे का मतलब है the water beneath the ice absorbs the solar radiation passing through the ice and so remain relatively warm. तो जो आइस की लेयर है उससे नीचे वाली लेयर जो होगी वह थोड़ी गर्म होगी, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन उस बर्फ में से होके जब नीचे वाले पानी में पहुंच रही है सोलर रेडिएशंस, तो वह उनकी वजह से थोड़ा पानी गर्म होगा, आइस के नीचे वाला पानी। When this warm water attain a temperature of 4 degree centigrade, it becomes denser and heavier. जब यह पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो जाता है, तो यह थोड़ा भारी, हैवी, डेंस, यानी बहुत ही नज़दीक नज़दीक कण हो जाते हैं उसके, और हैवी हो जाता है। Consequently, it sinks to the bottom where it mixes with the bottom water of the lake. और इसका नतीजा यह होता है कि यह पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी जो है वह है नीचे जाने लगता है, और वहाँ नीचे जाके यह नीचे वाले पानी से मिक्स होता रहता है, विच इज़ वार्म्ड बाय हीट कंडक्टेड फ्रॉम द बॉटम मड। और नीचे जाके यह हीट मड की वजह से जो है गर्म हो जाता है। मड के द्वारा, मड के अंदर जो हीट है थोड़ी गर्म है मिट्टी, तो उसके द्वारा यह गर्म हो जाता है। दिस रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर एट द बॉटम, दो द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। तो जो बॉटम मोस्ट जो पानी है वहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा, जबकि बाकी सारे जो है स्थितियाँ वह स्टेबल रहती हैं, अनडिस्टर्ब्ड रहती हैं। दैट इज़ the less dense surface water in the form of ice or at 0 degree floats on the top of the warm heavier water, which is at an appropriate temperature of 4 degree centigrade. तो सबसे टॉप वाला जो बर्फ जो बनी हुई है वह 0 डिग्री पर फ्लोट करता रहता है, और उसके नीचे जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हैवियर
पाया जाता है। बोथ ऑफ दीज लेयर्स रिमेन स्ट्रेटिफाइड एंड डू नॉट मिक्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये दोनों ही लेयर्स जो है वह अलग अलग बनी रहती हैं और यह विंटर के दौरान आपस में मिक्स नहीं होती, सो दैट द लेक इज said to have undergone winter stagnation or stratification। तो ऐसा मानते हैं कि ये विंटर स्ट्रेटिफिकेशन और स्टैग्नेशन हो गया है। नेक्स्ट है ओवरटर्न। द समर और विंटर स्ट्रेटिफिकेशन इज सीजनल। समर और विंटर स्ट्रेटिफिकेशन तो सीजनल है, यानी सीजन समर का आएगा तो समर स्ट्रेटिफिकेशन होगा, विंटर आएगा तो विंटर स्ट्रेटिफिकेशन। सर्कुलेशन ऑफ लेक वाटर अकर्स ट्वाइस ईयर। सर्कुलेशन ऑफ लेक जो है वह उस वाटर का 2 बार सर्कुलेशन होता है, ट्वाइस ईयर। एक साल में 2 बार वाटर सर्कुलेट होगा इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑटम मीन्स फॉल seasons by a process called overturn. This circulation is important for lakes which undergo stratification as it allows through mixing of oxygen, phytoplankton, and nutrients within the lake. Let us now understand the process of overturn both in the spring and autumn season. Spring overturn. In spring and early summer seasons, the increased solar radiation melts and ice cover। स्प्रिंग के अंदर एंड अर्ली समर के अंदर जो सोलर रेडिएशंस बढ़ जाते हैं तो यह ऊपर वाली आइस कवर को मेल्ट कर देता है, विच एज इट अटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। और यह टेम्परेचर अटेन कर लेता है 4 डिग्री सेल्सियस का एंड बिकम्स डेंस एंड हैवी एंड सिंक्स टू द बॉटम। और जब हैवी और डेंस हो जाता है ये तो ये बॉटम में जाने लगता है पानी, डिस्प्लेसिंग द लोअर वाटर विच मूव्स अप। तो जब ऊपर वाला पानी नीचे जाएगा तो स्वतः ही नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फर्दर हेल्प्ड बाय प्रिवेलिंग समर। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है यह समर प्रिवेलिंग में हेल्प करता है, समर विंड्स, एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग ओवरटर्न, और इसको हम कहते हैं स्प्रिंग ओवरटर्न। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फर्दर हेल्प्ड। सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है और ज़्यादा इसको सहायता मिलती है समर विंड्स से, जो हवाएं चलती है उससे जो है सर्कुलेशन, ऊपर वाला पानी नीचे और नीचे वाला पानी ऊपर आता रहता है। दिस इज नोन एज स्प्रिंग ओवरटर्न। और ऐसा ही होता है ऑटम ओवरटर्न या फॉल, यानी जब गर्मी खत्म होने वाली होती है तब। इन ऑटम और अर्ली विंटर द एयर टेम्परेचर फॉल्स रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर। ऑटम के अंदर या फॉल के अंदर या अर्ली विंटर, सर्दी की जब शुरुआत होती है उस समय एयर टेम्परेचर गिरने लगता है और इसका नतीजा यह होता है कि सरफेस वाटर ठंडा होने लगता है, कूल होने लगता है। व्हेन द सरफेस वाटर कूल्स टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब सतह वाला पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स डेंस एंड हैवी। और 4 डिग्री जब 4 डिग्री हो जाएगा तो डेंस और हैवी हो जाएगा और यह नीचे सिंक होने लगता है बॉटम में, डिस्प्लेसिंग द बॉटम वार्म वाटर विच राइजेज द सरफेस। और नतीजा ये होता है कि नीचे से जो वार्म वाटर है वो ऊपर आने लगता है। दिस मिक्सिंग ऑफ द surface and bottom layer is further facilitated by strong winter winds। और यह जो बदलाव है कि ऊपर वाला पानी नीचे और नीचे वाला पानी ऊपर, या जो ये सर्कुलेशन है इसको और बढ़ावा देता है विंटर विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंटर विंड्स जो चलती है वह इस चीज़ को और बढ़ावा देती है एंड इज कॉल्ड फॉल ओवरटर्न, और इसको हम फॉल ओवरटर्न से जानते हैं। अब लाइट स्ट्रेटिफिकेशन, as you have already read, the penetration of light in water bodies is limited depending on the transparency of water and its ability to absorb light। तो आपने पहले जैसे पढ़ा है कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट जो है, यानी लाइट के नीचे पानी में नीचे पहुंचने की क्षमता जो है यह डिपेंड करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर पे
एंड इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। ट्रांसपेरेंसी यानी उसके अंदर कितने, पानी के अंदर कितना घुलित दूसरा मटेरियल है, चाहे वह सॉल्ट हो, सॉरी, चाहे वह सॉल्ट्स हो, चाहे उसके अंदर मिट्टी घुली हो, चाहे उसके अंदर अत्यधिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हों, तो उस वजह से जो है यह लाइट की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट वह कम हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पेनिट्रेशन लेक्स बिकम वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड इनटू टू बेसिक लेयर। तो लाइट पेनिट्रेशन के आधार पर जो है दो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाते हैं। द अपर trophogenic zone corresponding roughly to the photic zone, about which you have read in section this, and photosynthetic dominates in, and the lower the tropholytic zone where decomposition is most active and which corresponds to the aphotic zone. तो फोटिक जोन और एफोटिक जोन दो जोन होते हैं। तो अपर लाइट को देखते हुए ट्रोफोजेनिक लोन जोन कहलाता है अपर वाला, जिसके दैट इज फोटोजेनिक फोटिक जोन है, यानी लाइट जहाँ तक पेनिट्रेट करती है वहाँ तक। और यहाँ पर फोटोसिंथेटिक जो है ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट करते हैं, और उसके नीचे होती है ट्रोफोलाइटिक जोन, यानी एफोटिक जोन होता है, यानी वहाँ पर जो है रोशनी नहीं पहुँचती और ज़्यादातर वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है इस एरिया के अंदर। बिटवीन दीज टू जोन इज ए कंपनसेशन डेप्थ। इन दो जोन्स के बीच में, यानी फोटिक जोन और एफोटिक जोन के बीच में एक कंपनसेशन डेप्थ पाई जाती है। The depth at which light intensity is such that the photosynthetic production is just enough to balance respiratory losses, and beyond which light penetration is so slow that it is no longer effective. तो यह जोन जो है यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी जो है इस तरह की होती है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन जो है इट इज़ बैलेंस्ड बाय द रेस्पिरेटरी लॉसेस। जो रेस्पिरेशन में जो लॉस हुआ है तो वह फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है इसको कंपेंसेट कर देती है। जनरली कंपेंसेशन डेप्थ अकर्स वेयर लाइट इंटेंसिटी इज अबाउट 100 foot candles or approximately 1% of full noon sunlight incident to the surface. So generally compensation depth occurs where light intensity is about 100 foot candles. So compensation zone generally 100 foot candle तक ही, अब करीब 100 फुट कैंडल तक ही होती है, या अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ फुल नून सनलाइट इंसिडेंट टू दी सरफेस, या 1% जो फुल नून सनलाइट जो है पहुंच रही है उसका 1% होता है। ऑक्सीजन स्ट्रैटिफिकेशन, यानी ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वह उसको लेके स्ट्रेटा बन जाते हैं। इन मोस्ट लेक्स ऑक्सीजन स्ट्रैटिफिकेशन नियरली पैरेलल टू दैट ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी कि ऑक्सीजन स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ ही चलता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटेस्ट ऑन द सरफेस, ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद डेप्थ। ऑक्सीजन की अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वह ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे नीचे डेप्थ पर वह कम होता जाता है। द सरफेस लेयर हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट ड्यू टू द टू रीजंस। सरफेस लेयर में दो मैक्सिमम कंटेंट होता है ऑक्सीजन का। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, बीइंग वेल लाइटेड, मैक्सिमम फोटो सिंथेटिक ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। पहली बात तो क्योंकि लाइट पेनिट्रेट होती है अच्छे से, तो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बन रही है यहाँ पे। सेकेंडली, बीइंग इन इंटीमेट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। दूसरा है कि वह एयर के कांटेक्ट में है यह वाली लेयर, तो इट परमिट्स फ्री डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू इट फ्रॉम द एयर। और यह जो है यह लेयर ऑक्सीजन को
फ्री डिफ्यूजन के लिए परमिशन देती है। द ऑक्सीजन कंटेंट बीनीथ द सरफेस वाटर डिक्रीजेस एज बोथ दीज ऑक्सीजन सरफेस सोर्सेज डिसअपियर। उसके नीचे नीचे वाली अपर मोस्ट लेयर के नीचे जो है लेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि यह दोनों ही जो है सोर्स जो है वहाँ पे नदारद है। एट द बॉटम द ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेस, और डेप्थ में ऑक्सीजन कंटेंट और डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजर्स विच यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर decomposition. Biota of lake. Lake exhibit life zones. So far you have been reading about the vertical zonation of the lake. The lakes can be divided into horizontal zone as well. This division is on the basis of the life forms existing in lakes. The penetration of sunlight in the lake influences the vertical gradient of sunlight, temperature, and oxygen. The horizontal gradation of lake is affected by distribution of organisms in the water. This results in definite zone which are as shown. Littoral zone, this is the shallow water zone near the shore where light penetrates to the bottom. Rooted plants can grow only in this region. Littoral zone जो है वह शैलो वाटर जोन होती है और किनारे के पास वाला शोर के पास वाला हिस्सा होता है जहाँ पे लाइट अच्छे से पेनिट्रेट करती है। लाइट जो है वह तले तक, इस एरिया के तले तक पहुँचती है और यहाँ पे रूटेड प्लांट्स जो है इस हिस्से में लग सकते हैं, उग सकते हैं। ओपन वाटर जोन, दिस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लिटोरल जोन। यह लिटोरल जोन के बाद वाला लेयर है एंड इज टू डीप फॉर लाइट टू पेनिट्रेट टिल द बॉटम। और यह बहुत गहरी होती है, यह जोन ज़्यादा गहरा होता है जहाँ तक कि यह लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती एंड फॉर रूटेड प्लांट्स टू ग्रो, और वहाँ उस हिस्से में रूटेड प्लांट्स का ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओपन, the zone is divided on the basis of light penetration and distribution of organism into lamnitic zone and profundal zone. यह ओपन वाटर जोन जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, लैमनेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। ये ऊपर वाला डायग्राम में दिखाया गया है। लिटोरल जोन के बाद में यह ओपन वाटर जोन है और उसमें से ऊपर वाला जोन जो है वह लिम्नेटिक जोन है और उसके नीचे वाला जोन है प्रोफंडल जोन, और सबसे नीचे लिखा है बेंथिक जोन। दिस फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द लेक एंड अंडरलाइज द लिटोरल एंड लिम्नेटिक जोन। यह है लिटोरल और लिम्नेटिक जोन के नीचे वाला एरिया होता है और सबसे डेप्थ वाला एरिया होता है। अब है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में, लिटोरल जोन क्योंकि किनारे के पास वाला जोन कहलाता है, तो प्लांट्स ऑफ द लिटोरल जोन, टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकर हियर। Non-rooted phytoplanktons, which include all kinds of algae occurring in the limnatic as well as those found only here. Certain species of green algae, blue-green algae diatoms remain attached to the plant surface and are collectively called periphyton. तो या इसके अंदर नॉन रूटेड फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जिसके अंदर सभी प्रकार की एल्गी सम्मिलित की गई है। दूसरी कुछ एल्गी, ग्रीन एल्गी, सर्टेन स्पीशीज जो है, कुछ प्रजातियां ग्रीन एल्गी की, ब्लू एल्गी की और कुछ डायटम्स की होती है विच रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट सर्फेसिस, और इस तरह से उनको पेरीफाइटोन, कलेक्टिवली नोन एज पेरीफाइटोन, या मैंने पहले भी जो है समझा रखा है। और रूटेड और बेंथिक फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी रूटेड जो कि जिनके जड़ें पाई जाती हैं, और बेंथिक फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं इसमें, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जो किसी सतह से, सबस्ट्रेटम से जो है चिपके हुए पाए जाते हैं, विच अकर इन कॉन्सेंट्रिक जोन्स विद इन द लिटोरल रीजन।
यह कॉन्सेंट्रिक जोन्स के अंदर पाए जाते हैं लिटोरल रीजन में। जनरल रिप्रेजेंटेटिव अरेंज्ड और रूटेड प्लांट्स proceeding from the shallow towards the deeper lake area include the following three zones। तो इसके अंदर तीन जोन्स बन जाते हैं: जोन ऑफ एमर्ज्ड प्लांट, जोन ऑफ प्लांट्स विच फ्लोटिंग लीव्स, जोन ऑफ सबमर्ज्ड वेजिटेशन। तो consisting of plants whose roots and stems remain submerged in water and whose upper leaves and stems protrude above the water level। तो ऐसे प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट यानी आधे पानी में डूबे हुए और आधे बाहर निकले हुए, तो उनकी रूट्स और स्टेम्स तो जो है वह पानी में जो है नीचे सबमर्ज्ड पाई जाती है, यानी आधी पानी के अंदर पाई जाती है, और उनकी लीव्स और स्टेम जो है वह पानी से बाहर निकली रहती हैं अबव द वाटर लेवल। फॉर एग्जांपल है कैट्स टेल, एरो हेड्स एक्सेट्रा। और इसके बाद में जोन ऑफ प्लांट्स with floating leaves containing plants ecologically similar to the previous types of plants। ecologically similar है, though the photosynthetic area of these plants is much more wide। photosynthetic area इनका बड़ा होता है, वाइड होता है। water shields and water lilies abound here। यहाँ पे water lily और water shields इस एरिया में पाए जाते हैं। zone of submerged vegetation includes plants which are completely or largely submerged in water। ऐसे प्लांट्स जो या तो पूर्ण रूप से या पूरी तरह से जो है वह पानी में डूबे हुए पाए जाते हैं। प्लांट्स ऑफ दिस जोन have highly divided leaves to overcome the tearing of leaves by strong water currents। तो पत्तियां जो है इनकी पूर्ण रूप से डिवाइडेड लीव्स पाई जाती हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वाटर करंट से जो है वह फट नहीं जाए, इसलिए फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एज देयर रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। क्योंकि और जो है इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि रूट सिस्टम इनके अंदर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, यानी जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होते। पॉन्ड वीड्स आर यूजुअली प्रोमिनेंट इन दिस जोन। पॉन्ड वीड्स जो है वह इस एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। सम रिप्रेजेंटेटिव इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ऑफ द लिटोरल जोन। एनिमल्स ऑफ द लिटोरल जोन। Animals of this zone may be herbivores, carnivores, or detritus feeders and are as diverse as plants। तो इसमें एनिमल्स सभी प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर और डेट्रिटस फीडर्स भी होते हैं, जैसे कि तरह तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं उसी प्रकार से। मैनी ऑफ देम सच आर रोटिफर्स, प्रोटोजोअन्स, इंसेक्ट लार्वी, हाइड्रास, ब्रायोजोआ आर न्यूस्टॉन्स, as they spend their lives attached to the stem or leaves of rooted plants. Others, such as snails, flatworms, and many types of insect nymphs and larvae, spend their lives moving about the plants. Zooplanktons here include species also found in the lemnatic as well as those that are not. The later include larger forms. They rest on the rooted vegetation while they are not actively swimming. The nectons here is rich in small swimming insects, particularly such as diving beetles, back swimmers, water boatmen, etc., many of which occur also in streams. Many species of fishes like mirau, sunfish, and northern pike are restricted to just this zone, while others move freely between here and the open water zone. Vertebrates living on the lake shore are found here and include amphibians, for example, frogs, reptiles, turtles, snakes, and mammals like beavers and muskrat. Benthos found in or on the floor underlying the littoral zone and are diverse. Most of them are detritus feeders, though some are carnivores. Open water zone, plants of the open water zone. In this
zone, plants are restricted to the limnatic one and generally consist of phytoplankton such as dinoflagellates, blue-green algae, and green algae. Of these, the single-celled planktonic algae are the main producer for the lake as a whole. The profound profoundal region of the open water zone has no green plants as it is dark and so cannot support photosynthesis. Animals of the open water zone. The limnatic region of this zone contains certain fishes such as rotifers, zooplankton such as crustaceans, and protozoans. In the profundal zone occur chemosynthetic autotrophs as well as heterotrophs. The latter may be carnivores or detritus feeders. Further, the larger fishes of the lakes are restricted to the profundal zone, which also has a well developed series of decomposers population present from top to the bottom. The bottom, which underlies the open water zone, contains benthos, whose diversity is low. Benthic animals found here are larvae of several insect species such as mudges and burrowing fleas, as well as clams, snails, tube worms, and composers. Now, the types of lakes. Types of lake. There are there are three types of lakes: oligotrophic, eutrophic, and mesotrophic lakes. Oligotrophic lakes depth surface area ratios. Oligotrophic lakes are deep, often with steep sides. Their surface to volume ratio is low. Surface area is small compared to depth. सरफेस एरिया छोटा होता है डेप्थ के बनस्पत. यूट्रॉफिक lakes are shallow and their surface to volume ratio is high. Surface to volume ratio high होता है and surface area is large relative to depth. Surface area large होता है और depth छोटी होती है, depth बहुत कम होती है. Mesotrophic lakes are intermediate between the oligotrophic and eutrophic lakes. Surface area and depth are प्रोपोर्शनल. सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है और डेप्थ एरिया भी ज़्यादा होता है. न्यूट्रिएंट स्टेटस. दीज लेक्स आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, particularly नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स जो है वह न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही पुअर होती हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं. इसमें न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर तीनों ही कम होते हैं. Eutrophic lakes, where these lakes are rich in nutrients such as nitrogen, phosphorus and organic substances. यह lakes rich यानी समृद्ध होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. Mesotrophic lakes जो है they are midly eutrophic and have characteristic features intermediate between the oligotrophic and eutrophic. ये है eutrophic और oligotrophic के मध्य में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन दीज लेक्स इज लो. ऑलिगोट्रॉफिक में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कि प्लांट्स उस एरिया में कितने हैं, उस यूट्रॉफिक लेक में, ऑलिगोट्रॉफिक लेक में कितने हैं. अब यूट्रॉफिक में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाई इन दीज लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. और मीसोट्रॉफिक लेक्स में दे कंटेन मॉडरेट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हैव मॉडरेट प्राइमरी प्रोडक्शन. तो मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, इसलिए मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी इसके अंदर पाई जाएगी.
स्पीशीज डाइवर्सिटी, ओलिगोट्रॉफिक में द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकरिंग हियर आर लो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम पाए जाएंगे, दो देयर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज हाई, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा हो सकती है। यूट्रॉफिक में द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दैट बायोमास इज हाई, दो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज लो, स्पीशीज डाइवर्सिटी इसके अंदर कम होगी। और ऑक्सीजन कंटेंट कितना होगा, ओलिगोट्रॉफिक में ऑक्सीजन कंटेंट इज सच लेक्स इज हाई एंड एक्सटेंड्स टू द बॉटम, ऑक्सीजन कंटेंट हाई होगा और नीचे तक पैंदे तक ऑक्सीजन कंटेंट हाई पाया जाएगा। यूट्रॉफिक लेक्स में ऑक्सीजन कंटेंट हियर इज लो ऑन दी होल, पूर्ण रूप से ही पूरे लेक में ही ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा। इट इज़ पर्टिकुलरली लो इन द बॉटम एरिया लेयर्स either seasonally or throughout the year. In some cases anaerobic conditions develop in the bottom layer of the lake, resulting in the elimination of aerobic organisms, especially fishes. And mesotrophic lakes के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट इज मीडियम। अब सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर बॉडी, water of oligotrophic lakes are transparent, appearing blue to green in sunlight. ओलिगोट्रॉफिक लेक्स का पानी जो है वह ट्रांसपेरेंट होता है और ब्लू या नीला या हरा दिखाई देता है सनलाइट में। वाटर्स और यूट्रॉफिक लेक्स आर क्लाउडी, यूट्रॉफिक लेक्स का पानी थोड़ा धुंध गुलगुला होता है, क्लाउडी होता है। यूट्रॉफिक लेक्स का पानी धुंधला होता है ड्यू टू एक्सेस एल्गल एंड प्लांट ग्रोथ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एल्गी उसमें होती है और प्लांट्स भी उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। इन द समर सीजन द लेक वाटर्स एज्यूम पी सूप और ग्रीन प्लांट कलर ड्यू टू द इंक्रीज्ड एल्गल ग्रोथ और ब्लूम्स, क्योंकि यहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ये है पूर्ण रूप से हरे जैसी, पानी ऊपर से पूरा हरा ही दिखाई देता है। और मीजोट्रॉफिक लेक्स में मीडियम टर्बिडिटी होती है, यानी न बहुत ज़्यादा धुंधला और न ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। अब इसके साथ में ही कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को करें, उससे आपको जो है आगे समझ में जो है क्वेश्चंस करेंगे तब आपको जो है मैटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही देर वेगी है। अरे